औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। As soon as Ørsted discovered that electric currents produce magnetic field, many scientists began to look for the reverse effect, that is, the cause an electric current by means of a magnetic field. In 1831, Michael Faraday in England and at the same time Joseph Henry in USA observed that an EMF is set up in a conductor when it moves across a magnetic field. If the moving conductor was connected to a sensitive galvanometer, it would show an electric current flowing through the circuit as long as the conductor is kept moving in the magnetic field. The EMF produced in the conductor is called induced EMF. This is the definition of induced EMF. And the current generated is called the induced current. This phenomena is known as electromagnetic induction. इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें। When the conductor is kept moving in the magnetic field, the EMF produced in the conductor is called induced EMF, and the current generated is called the induced current, and the phenomena is called electromagnetic induction. अगेन हम डिफाइन करते हैं, इफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्किट चेंजेस एन EMF and a current are induced in the circuit, this phenomena is called electromagnetic induction. अभी कहाँ पे अप्लाई होता है? This phenomena is used in power generating system. Transformer also uses this principle to produce EMF. A credit or ATM card also uses this principle. Any appliances, refrigerator or computer etc. that you plug into a wall socket uses of induced EMF. अब हम डिस्कस करेंगे induced EMF and induced current को. There are many ways to produce induced EMF. फिगर illustrate one of them. इस फिगर में देखें, एक मेथड है. इसमें आपके पास एक कंडक्टर है लेंथ L, उसका हमने लूप बनाया है वायर्स के साथ और एक गैल्वानोमीटर को उससे कनेक्ट कर दिया है. यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है. इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. इट मीन्स कि इसमें करंट इंड्यूस हो गया है एंड दिस करंट इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड EMF. Consider a straight piece of wire of length L placed in the magnetic field of a permanent magnet. The wire is connected to a sensitive galvanometer. This forms a closed path और लूप विदाउट एनी बैटरी. अब इसमें हमारे पास कोई बैटरी नहीं है. इन द बिगनिंग व्हेन द लूप इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, नो करंट इज शोन बाय द गैल्वानोमीटर. इफ वी मूव द लूप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द लेंथ L of the wire is dragged across the magnetic field and the current flows through the loop. As we stop moving the loop, current also stops. Now if we move the loop in opposite direction, current also reverses its direction. This is indicated by the deflection of the galvanometer in the opposite direction. जब हम लूप को फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर की जो निडल है उसकी एक साइड पे डायरेक्शन होगी और जब हम लूप को बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे हो जाएगी.
इट मीन्स कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, और डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द लूप। द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विथ विच कंडक्टर मूव्स एंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। अब हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लूप की स्पीड पे और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे। इफ़ वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बाय inserting different resistors in the loop and move it in the magnetic field with the same speed every time, we find that the product of induced current and the resistance of the loop remains constant, that is I into R equal to constant, and this constant is called induced EMF। इसमें यह है कि हम अगर ये जो इंडक्टर है इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, अगर इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस और करंट इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या कहलाता है, ईएमएफ। तो इसमें ये है कि रेजिस्टेंस हम इंक्लूड करते जाएं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। द करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, और इंड्यूस्ड करंट को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मूविंग द लूप फास्टर रिप्रेसिंग द लूप बाय अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें तब भी इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम स्पीड को फास्टर करते जाएं तब भी करंट ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें फिर भी करंट इंक्रीज होगा। If we perform the above experiment in other ways, that is, instead of moving the loop across the magnetic field, we keep the loop stationary and move the magnet, then it can be easily observed that the results are the same। अब अगर हम लूप को मूव नहीं करवाएं और मैग्नेट को मूव करवाएं तो तब भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस होगा। Thus, it can be concluded that it is the relative motion of the loop and the magnet that causes the induced EMF। तो इससे हमें ये बात पता चली कि लूप और मैग्नेट इनकी जो relative motion है उससे EMF इंड्यूस्ड होती है। In fact, this relative motion changes the magnetic flux through the loop. Therefore, we can say that an induced EMF is produced in a loop. If the magnetic flux through it changes, the greater the rate of change of flux, the larger is the induced EMF। अब हमारे पास ये है कि number of magnetic field lines passing through the conductor is called flux, electric flux। अब जब हम लूप को मूव करवाते हैं या मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और करंट इंड्यूस होता है। ग्रेटर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ग्रेटर इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। देयर आर सम अदर मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ लूप बाय प्रोड्यूसिंग अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। अब इसमें यह है कि अब हमें ये बात समझ आ गई है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो हम फ्लक्स को चेंज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे। देखिए डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि ये एक बार मैग्नेट है और ये एक कॉइल है और इसके साथ ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ये लूप है हमारे पास। हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कॉइल को मूव करवाएंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब हम फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन एक होगी, जब हम बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब वो हमें गैल्वानोमीटर की जो निडल है उससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है। अभी सेकंड मेथड है, इसमें हम कॉइल को स्टेशनरी रख लेंगे, मैग्नेट को मूव करवाएंगे। जब हम फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर की निडल जो है एक साइड पे डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो करेगी, और जब हम
बार मैग्नेट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है उसकी रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि जब हम फॉरवर्ड मूव करवाते हैं तो करंट की डायरेक्शन और होती है, जब बैकवर्ड मूव करवाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। In figure 15.2a shows a bar magnet and a coil of wire to which a galvanometer is connected. When there is no relative motion between the magnet and the coil, the galvanometer indicates no current in the circuit. As soon as the bar magnet is moved towards the coil, a current appears in it. As the magnet is moved, the magnetic flux through the coil changes, and this changing flux through the produces the induced current in the coil. जब हम मैग्नेट कॉइल को टुवर्ड्स मैग्नेट मूव करवाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। तो ज़्यादा लाइंस, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल को कट करती हैं, फ्लक्स ज़्यादा चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। इसी तरह से जब ये बैकवर्ड मूव करवाते हैं तब भी हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। When the magnet moves away from the coil, a current is again induced, but now in opposite direction. The current would also be indicated if the magnet is held stationary and the coil is moved. अब अगर हम इसमें मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, कॉइल को मूव करवाएं, या कॉइल को स्टेशनरी रखें, मैग्नेट को मूव करवाएं, इन दोनों में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा। अब हम एक और मेथड को डिस्कस करेंगे। देयर इज अनदर मेथड इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल by changing the area of the coil in the constant magnetic field. Figure A shows no current is induced in the coil of constant area placed in a constant magnetic field. अब ये देखें, ये एक लूप है, उसके साथ हमने ये गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है। जब इसी तरह स्टेशनरी रहता है तो इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता। ये नंबर ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको कट कर रहे हैं। However, when the coil is distorted so as to reduce area, जब हम कॉइल को बैंड की तरह इस डायरेक्शन में कर देते हैं तो अब ये देखें कि नंबर ऑफ लाइन जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इट मीन्स इसमें करंट इंड्यूस हुआ है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है। इसी तरह हम इसको चेंज करते रहेंगे, कॉइल को इस पोजीशन में ले आएँ और फिर इस पोजीशन में ले आएँ, तो इससे क्या होगा कि इसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। When the area is no longer changes, if the distorted coil is brought to its original circular shape, there may be increasing the area. An oppositely directed current is induced, which lasts as long as the area is changing. जब तक एरिया चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस होगा। फिर फर्दर हमारे पास एक और मेथड है, इसमें हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे। इस तरह से हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे। कॉइल को रोटेट करवाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल को कट कर रही हैं वो चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट कैन आल्सो बी जनरेटेड व्हेन अ कॉइल of constant area is rotated in a constant magnetic field. Here also the magnetic flux through the coil changes. This is the basic principle used in the
इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। यही मेथड हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ करते हैं, जिसमें कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। ये देखें कि कॉइल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है, तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होती है। A very interesting method to induce current in a coil is by producing a change of magnetic flux in a nearby coil. फर्दर हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें देखें कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, कोई भी सर्किट में चीज़ नहीं है जो करंट प्रोवाइड करे। और यहाँ हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है इसके साथ एक बैटरी अटैच है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, जो ज़ीरो से अपनी फाइनल पोजीशन पे आएगा। जैसे ही करंट इसमें इंक्रीज होगा तो इसमें इसका फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का चेंज होगा और इसका चेंजिंग फ्लक्स इसको कट करेगा, तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस होगा।